not take like no more than 5-7 minutes of yours. Once we can please interact एक बार quickly 5-7 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं. Everyone, guys, great. Akshat, Suraj, Krishnakant, Nikhil. Okay, cool. ठीक है. So, guys, first of all, very warm welcome. I just wanted to introduce Ruchita here. So, basically, she is one of the lead data analyst in a top MNC in Singapore itself. So, basically, she is here to guide you out for the data analytics part. And meanwhile, there's people, those who are getting taught from Mantra, like for the ML part and AI part. So sadly, Antara's, there's a mishap that has happened. The big mishap, छोटा mishap नहीं है. Like people, those who were with the Antara's batch for ANML. तो अभी थोड़ा सा we are not sure कि when she is going to join back. So for the meantime, like we can participate into the data analytics itself. So obviously data analytics was a part of curriculum. So that's something that we're going to cover. And meanwhile, rest assured, बहुत सारी चीजें आ रही हैं. Like the backend is absolutely going to get changed. SQL labs and everything that are going to come up in the next 5-7 days of time itself. सारा backend and everything that is going to get changed. And बाकी देखिए, we will try to cover each and everything on time. The pace is going to be a little high. So try not to miss a lot of classes because थोड़ा सा difficult रहेगा. ठीक है. तो here रुचिता इज गोइंग टू शेयर यू कि आपके पास क्या क्या रोड मैप रहने वाला है डेटा एनालिटिक्स का फॉर द नेक्स्ट 2 months, 2.5 months, सो अप्रोक्सीमेटली. तो क्या क्या चीजें है और होने वाली है, क्या क्या चीजें करने वाले हैं आप, मतलब व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी टॉट, व्हाट आर द थिंग्स दैट विल, मतलब बेसिकली दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स और व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट रुचिता विल बी गोइंग टू गिव यू. So Ruchita holds up like good, good 4-5 years of work experience into this particular field, and she is, leading, a team in her MNC as of now. So quite good experience. सीखने को आपको काफी कुछ मिलेगा. So I would say try to learn from her. And initially, this would be, I think, Ruchita, this is your first teaching venture. That's something that you're doing, if I'm correct. तो Yeah. तो इनिशियली देखिए 2-3 क्लास 4 क्लास इज समथिंग दैट एवरीबडी ट्राइज टू अकोमोडेट, एंड जिस तरह की टीचिंग, जिस तरह के फीडबैक्स इज समथिंग दैट यू वुड वांट टू गिव हर. अगर आपको लग रहा है कि किस पर्टिकुलर चीज में एवरीबडी इज एग्रीइंग अपॉन, सो इफ यू वांट टू गिव हर सम फीडबैक्स, आई वुड से गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स एज मच एज यू कैन. कंस्ट्रक्टिव एज इन, आई डोंट वांट पीपल टू बी क्रिटिसाइज, बिकॉज फर्स्ट डे पे यार देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. तो अगर कोई भी फीडबैक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव इट इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे. सो आप कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. So if there is a way that you would want to be taught upon, if there is a like thing or example or something like that, so आज की class is much more about road map that we are going to follow, and you can ask her the relevant questions. What is trending, क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या ट्रेंड में नहीं चल रहा है, क्या आप इंटरव्यू क्वेश्चंस वुड बी लाइंड अप. तो आई वुड से कि वी वुड वांट इंटरैक्टिव सेशन, तो आप इंटरैक्ट करिए. द मोर दैट यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट, द बेटर इट वुड बी. ठीक है. ओके एवरीवन. ठीक है. ठीक guys, over to you, Ruchita. I'll be here in the session for next 5-7 minutes, then I'll probably leave. So over to you. You can basically carry it along. Thanks, Chaitanya. Thank you so much. Welcome to the data analytics course, everyone. This will be an introductory session with me. I'm your technical mentor. As Chaitanya already told, I'm Ruchita Jain, and I'm having 3 years of experience in software development and going to complete almost 3 years in data analytics side. Working as an analytics lead in one of the company that is present in Singapore. So great to have you all here. Let's start our session by understanding the data analytics part. I think you can be able to see my screen, right, everyone? Yes, yeah. Yes, it's visible. Yeah, great.
ओके सो मुझे लगता है हम सबको पता है अभी क्या है डेटा एनालिटिक्स और क्या इसका सिग्निफिकेंस और नीड है इन द न्यू नियर फ्यूचर एंड इन आवर कैरियर, राइट? तभी हम लोग सब यहाँ पे प्रेजेंट है आज डीए सीखने के लिए। सो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग द सेंस ऑफ डेटा। हमारे पास जो रॉ डेटा होगा उससे हमें जो भी इंसाइट्स चाहिए हमारे बिजनेस को स्मार्टर डिसीजंस देने के लिए, जो भी इंसाइट्स चाहिए वो हम वैल्यूएबल इंसाइट्स उससे फेच करेंगे और उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि डेटा का कलेक्शन, उसकी क्लीनिंग, उसका एनालाइजिंग और फिर उसका विजुअलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ बार्स, चार्ट्स, pie charts and many different charts are available on different tools। वो हम सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। इसमें मेनली हम कुछ स्किल्स के साथ डील करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इनिशियली सबसे पहले हम सीक्वल से स्टार्ट करेंगे और वो जो हमारी स्किल्स होंगी वो ग्रेट डिमांड में है अभी हमारे इस टेक वर्ल्ड में। तो देखते हैं कौन सी स्किल्स हैं। So in the growing field across industries, our skills are in high demand. So we are having high paying and rewarding career options in data analytics. तो हमारे यहाँ पे जितने भी फाइनेंस कंपनीज हैं, हेल्थ केयर है, रिटेल है, टेक है, जो भी है, सबको डेटा प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है और ये शुरुआत होती है डेटा एनालिटिक्स से ही और फिर उसके बाद हम लोग डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा साइंटिस्ट वाले फील्ड में भी हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेनली जो रोल्स डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं वो होता है डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बीआई डेवलपर, दैट इज बेसिकली पावर बीआई डेवलपर, और डेटा साइंटिस्ट। डेटा इंजीनियरिंग रोल में भी हम लोग डेटा एनालिस्ट की स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हमारे कोर्स का ओवरव्यू कैसा रहेगा? ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीक्वल सीखने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होती है वो डेटाबेस की लैंग्वेज बोलता है सीक्वल। तो हमें भी हिंदी इंग्लिश तो हमें आता ही है, ठीक है, लेकिन डेटा को नहीं आता है। हमें डेटा को डेटा से बात करने के लिए, उससे कुछ इंसाइट्स लेने के लिए, उसको कुछ बताने के लिए और उससे कुछ पूछने के लिए ये सीक्वल वाला लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, तभी हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक हमारे पास टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, ये भी हम सीखने वाले हैं। सीक्वल के बाद या तो हम पावर बीआई कवर करेंगे या फिर एक्सेल कवर करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे कि हम लोग का मोड ऑफ डेटा कैसा है, मतलब अभी हमारे पास कैसा डेटा है, कैसे प्रोजेक्ट्स में हम लोग वर्क करने वाले हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि सीक्वल के बाद क्या लेने वाले हैं। ठीक है, तो पावर बीआई जो टूल होता है ये हमें डैशबोर्ड्स क्रिएट करने के लिए और रिपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो काम हम काफी टाइम लगा के करते हैं बाकी टूल्स में, वो पावर बीआई में आसानी से हो जाता है। और इसका एक और मेन एडवांटेज कह सकते हैं हम लोगों के लिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए इसका मेन एडवांटेज यही होता है कि इसमें हमें ज्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोडिंग हम लोग सीख जाते हैं तो आगे हम एडवांस जो इसके फीचर्स हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिना कोडिंग के भी हम लोग काफी कुछ इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग टैबल्यू पे, जो हम पावर बीआई के बाद लेंगे, वो भी विजुअलाइज करने के लिए डेटा को और ब्यूटीफुल चार्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। आप लोग मुझे मेरे पेस के अकॉर्डिंग रोक सकते हैं, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा जल्दी भाग रही हूँ, कवर नहीं कर पा रहे हैं, या मैं बहुत धीरे हूँ, तो आप लोग अपना मुझे बता सकते हैं कि कैसे हमें चलना है आगे। ठीक है, सो इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन। मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए हूँ और वो दोनों की कंफर्ट, मेरा और आप लोगों का दोनों की कंफर्टेबिलिटी जोन के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया आपको कि हम लोग फिर एक्सेल भी देखते हैं। सीक्वल के बाद हम एक्सेल देखेंगे या फिर पावर बीआई देखेंगे। तो एक्सेल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, हम लोग बचपन से ही एक्सेल सीखते हैं और उसमें कुछ ना कुछ काम करते हैं, मतलब एक्सेल से तो टकरा ही जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, भले ही हमें एनालिसिस नहीं करना हो, फिर भी बहुत सारा काम हम लोग एक्सेल में शुरू से करते हैं। हमारे स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, मुझे लगता है कि कुछ कुछ फॉर्मूलेज और कुछ कुछ फीचर्स एक्सेल के आप लोगों को सबको पता होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एसक्यूएल सीखने वाला है, तो उसके बारे में ही देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ज्वाइंस को देखेंगे। और ये जो सेलेक्ट, वेयर और ग्रुप बाय आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसके कीवर्ड्स हैं और ये क्या काम आते हैं, सीक्वल इन्हें क्या समझता है, हमारे को ये कैसे हेल्प करेंगे, ये हम जब इसका सीक्वल का सिंटैक्स, उसकी कोडिंग और डेटा के ऊपर वर्क करेंगे तब हम लोग सीखेंगे। फिर इसमें ज्वाइंस हैं, आगे कंस्ट्रेंट्स और बहुत सारे और भी इसमें ऑप्शंस हमें मिलेंगे देखने के लिए।
उसके बाद एडवांस सीक्वल की अगर हम बात करें तो वी विल लर्न अबाउट विंडो फंक्शंस। उसमें हमारे रो नंबर, रैंक, dense rank, many other over, partition by, order by, many other SQL functions will be there, which are called as window functions. फिर sub queries, and then sub queries is like sub query one sub query is like a query in a query, so it is like nested query. तो अभी डोंट वरी, ये सारे वर्ड्स देख के आपको घबराना नहीं है, डोंट बी स्केरी, बिकॉज दीज वर्ड्स आर काइंड ऑफ समथिंग लाइक अरे कितना एडवांस है ये, ऐसा नहीं है। जब हम लोग सीखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो ये सब कुछ इजी होने वाला है। हाँ, फिर उसके बाद आता है सीटीई। सीटीई आर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसमें हम कॉमन टेबल्स बनाते हैं और फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो वही चीज जो हमने अभी आगे पीछे पीछे देखी थी पावर बीआई के लिए, कि डेटा क्लीनिंग करनी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, वो सब सीक्वल में भी होता है। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए सीक्वल में हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हम लोग फिर पावर बीआई और टैब्ल्यू एक्सेल पे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जब ये सब सीख जाएंगे तो फिर डेटाबेस हैंडलिंग करना सीखेंगे, और उससे इंसाइट्स कैसे निकालना है वो सब हम लोग सीक्वल में, पावर बीआई में, टैब्ल्यू में, सब में सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पावर बीआई के ऊपर, इसका इंट्रो देख लेते हैं। Power BI is something which brings data to the life. We need to connect with one of the data sources, like वो Excel भी हो सकता है, SQL भी हो सकता है, और any other. SQL में आप MySQL ले सकते हैं, MS SQL सर्वर ले सकते हैं, PostgreSQL ले सकते हैं, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अभी जब हम Power BI पे वर्क करेंगे तो स्टार्टिंग ही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें डेटा सोर्स को कैसे कनेक्ट करना है। तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू कनेक्ट विद द डेटा सोर्स इन पावर बीआई, ठीक है। फिर जब हमारे पास डेटा पावर बीआई में आ जाएगा तो फिर हमें उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि हमें क्या उससे इंसाइट्स चाहिए, तो हम उसे कैसे बदलें, क्या उसमें कैलकुलेशंस लगाएं, क्या स्टेप्स फॉलो करें कि जैसा हमें चाहिए वैसा मिले, और फिर डेटा का विजुअलाइजेशन हम लोग चार्ट्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। फिर जब हम लोग चार्ट्स बनाते हैं तो डैशबोर्ड्स बनते हैं। डैशबोर्ड्स आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ चार्ट्स, ठीक है, जो साइमल्टेनियस एक स्क्रीन पे हमें दिखाई देते हैं, तो उसे हम डैशबोर्ड कह सकते हैं। एंड ग्रुप ऑफ डैशबोर्ड्स आर कॉल्ड रिपोर्ट्स। जैसे हम लोग डेटा एनालिसिस में एक तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो मल्टीपल डैशबोर्ड्स होते हैं, और एक डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल चार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद दो चीजें आती हैं पावर बीआई में। डेक्स आता है, डेट इज डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, और एक हमारा पावर क्वेरी आता है, वो हम पावर क्वेरी एडिटर में करते हैं। इंटरफेस पावर क्वेरी एडिटर का रहता है, ठीक है। फिर पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग एम लैंग्वेज सीखेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक सीखेंगे। फिर जब उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें आराम से उसमें चीजें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट वी नीड टू पब्लिश द रिपोर्ट्स टू द वेब। अच्छा, पावर बीआई का ये होता है कि पावर बीआई में एक डेस्कटॉप ऐप होता है जिसपे हम वर्क करते हैं, डेवलपर्स वर्क करते हैं, जिन्हें चार्ट्स बनाने हैं या डैशबोर्ड्स बनाने हैं। एक होता है पावर बीआई सर्विस। सर्विस पे हम अपने रिपोर्ट्स को, जो डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स हमने बनाए, उन्हें पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं डेटा देख सकते हैं, उन्हें डेस्कटॉप वाली ऐप की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट सर्विस के थ्रू देख सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम डेस्कटॉप पे हमारा पावर बीआई का रिपोर्ट या डैशबोर्ड बना के सर्विस पे उसे पब्लिश कर सकते हैं, और शेयर कैसे करेंगे, तो वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, then let's come to the Tableau. Okay, Tableau is somewhat similar to Power BI, but there is much difference. काम वही है कि रिपोर्ट्स बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, डेटा को क्लीन एक्सप्लोर करके विजुअलाइज करना है, मैप्स बनाने हैं, कैलकुलेशन करना है, फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेप्स, कुछ और स्टेप्स फॉलो करके होता है। तो ये दो डिफरेंट टूल हम लोग सीखने वाले हैं विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा के लिए। नेक्स्ट लेट्स कम टू एक्सेल। तो एक्सेल तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हम लोग पहले ही काम इसमें कर चुके हैं, जैसे सम, इफ, वी, लुकअप, ये सब हम लोग शुरू से ही लगाना सीख चुके हैं, और नहीं भी सीखे हैं तो हम लोग स्क्रैच से दोबारा सीखेंगे। इस बार डेटा एनालिटिक्स के कंसेप्ट के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि हमें उस पर्सपेक्टिव से सीखेंगे कि कैसे डेटा को हम लोग हमारे डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पाइवट टेबल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब एक्सेल के फीचर्स हैं। पावर क्वेरी सिमिलर टू द पावर बीआई। दोनों ही एक्सेल और पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, तो हमें इसमें दोनों
तो इन दोनों में ही पावर क्वेरी का ऑप्शन मिलता है। पावर पाइवेट डेटा मॉडल्स ये होता है कि भाई हम कैसे, दो हमारे पास टेबल है डेटा की और उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, तो हम लोग कैसे उन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। सीक्वल जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें ही मैं आपको डेटा मॉडल्स के बारे में कुछ कुछ मतलब इंसाइट्स देना शुरू कर दूंगी, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए जब हम पावर बीआई और एक्सेल वगैरह सीखें कि डेटा मॉडल्स होता क्या है और हम डेटा मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस कंसेप्ट एक्सेल का आता है, फिर ऑटोमेशन विद मैक्रोस। एक्सेल में एक मैक्रो का फीचर भी होता है, उसमें हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपना मैक्रो, और जब हम उसे दूसरी बार चलाएंगे या अगेन फिर हम कभी फ्यूचर में चलाएंगे तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। और मैक्रो का हम कोड भी लिख सकते हैं, वो विजुअल बेसिक वीबीए में होता है। ठीक है, वो एक दूसरा लैंग्वेज है, वो भी हम थोड़ा थोड़ा उसका बेसिक सीखेंगे कि एडवांस कंसेप्ट हैं इसके एक्सेल के। ओके, now we have covered all this about SQL, Power BI, Tableau and Excel. So ये सारा हम लोग सीखने वाले हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें जो इनसे इंटर रिलेटेड है, तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा इन सब चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, और हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू चलेंगे, और डाउट्स भी साथ साथ लेते चलेंगे कि अगर किसी को किसी भी चीज में या किसी भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम या इशू है तो आप लोग तभी की तभी पूछ भी सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको डाउट सेशन और ये असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। दूसरा ये है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं फिर हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेंगे हमारे कोर्स में। सो वी नीड टू स्टार्ट विद SQL and then afterwards we can take Excel after getting familiar with the SQL. Now afterwards we need to move to the Power BI and Tableau, जिसमें हम लोग डैशबोर्ड्स बनाएंगे। डैशबोर्ड्स लाइक द we can say the interactive dashboard. So अगर मैंने एक चार्ट का कोई बार सेलेक्ट किया तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन दूसरे चार्ट में दिखे। तो अभी मैं आपको ऐसे बोल के बता रही हूँ तो शायद आप लोग नहीं ग्रैब कर पा रहे होगे, पर जब हम लोग ये करेंगे हैंड्स ऑन होगा तब आपको समझ आएगा कि ये बहुत इजी है, कुछ भी इसमें टिपिकल या रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज वी नीड टू प्रैक्टिस रेगुलरली विद द मिनी प्रोजेक्ट्स एंड एक्सरसाइजेस। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लैबोरेटरीज मिल जाएंगी, वो अभी थोड़े दिन में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं विद इन अ वीक और टू। सो आई थिंक इट विल बी एक्सेसिबल टू यू ऑल। सो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, नाउ वी नीड टू आफ्टरवर्ड्स जब हम प्रोजेक्ट्स और एक्सरसाइजेस कर लेंगे ये सब चीजें सीखने के लिए, तो वी विल बी कैरियर रेडी एंड देयर विल बी नो इश्यू, राइट। तो अभी जब मैं आपको सीक्वल से स्टार्ट करूंगी तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे आपको दिखाऊंगी क्वेरी रन करने के लिए। ठीक है, कि कैसे हम लोग क्वेरी रन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साथ के साथ हैंड्स ऑन करना तो आप लोग MS SQL सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कमेंट, नॉट इन द कमेंट्स बट आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर SQL सर्वर डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। एंड एक उसमें होता है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये दोनों चीज हमें डाउनलोड करनी पड़ी, फर्स्ट इज SQL सर्वर एंड सेकंड इज SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। दोनों में फर्क ये है कि SQL सर्वर इंस्टॉल करने के बाद मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करना पड़ता है, वो एक तरीके से हमारा इंटरफेस होता है। ठीक है, सो वी नीड टू राइट द क्वेरीज in management studio, so they will be run over the server and they get the data from there and show us in the management studio itself. If you want to see the look of management studio, I will tell you because it is already installed at my system, so you can tell me if it is required. If it is not, that's very good. ओके, सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इफ इट्स न्यू टू यू। बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से टेक वर्ल्ड में नहीं है, ट्रांजिशन करना चाहते हैं। किसी का कॉमर्स में इंटरेस्ट था तो उन्होंने कॉमर्स को ऑप्ट किया, या फिर आर्ट से है वो, फिर कोई और स्ट्रीम है उससे है, टेक वर्ल्ड से नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं सीख सकते हैं। उनके लिए भी बहुत इजी होता है करना, बस हमें स्टार्ट करने का एक मोटिवेशन होना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी।
and if you feel like there are issues in the concepts, आपको लगता है कि technically मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे और भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, एंड लेट्स मेक दिस लर्निंग जर्नी एक्साइटिंग टुगेदर। सो इट इज अ बिगनर फ्रेंडली कोर्स, और ये आपके करियर को बूस्ट करने वाला है। तो आप लोगों को भी बहुत सारे एफर्ट्स इसमें डालने पड़ेंगे, मेनली आप लोगों को ही डालने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तो आपको बस कंसेप्ट बताने वाली हूँ, सिंटेक्स बताने वाली हूँ, वो कैसे वर्क करता है ये बताने वाली हूँ। और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप को मैं वो सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा सकती हूँ। लेकिन क्वेरीज और तभी आएंगी क्वेरीज जब हम खुद से हैंड्स ऑन करेंगे चीज़ों पर, खुद से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डाउट सेशन लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से बता रही हूँ क्या करना है। क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Hi Ruchita, I have a question. या चलिए। Yeah, you told us that you will be teaching the SQL in MS SQL. Why not MySQL or PostgreSQL, which are actually have more commonality in major companies? मोर कॉमन इज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और इसीलिए मेरे पास वो है। मेरे सिस्टम में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं फिर उसी के थ्रू जाऊंगी। आई डोंट वांट टू इंस्टॉल एनी अदर सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर आपको पोस्टग्रे सीक्वल में से सीखना है या माई एसक्यूएल से सीखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बस आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंटेक्स सीक्वल का ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे आप कोई भी सीक्वल एडिटर से पढ़ाई करें, ऑलमोस्ट सिंटेक्स सेम होता है। थोड़ा सा अगर डिफरेंस आएगा तो वो आपको अपने आप आपका जो एडिटर है वो आपको बताएगा कि ये सिंटेक्स एरर है, तो हम लोग उसे दूर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे पास MS SQL सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट इज द ओनली थिंग विच आई एम गोइंग विद। अच्छा, दूसरा मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर BI में भी कोई इशू नहीं है। सो बोथ आर ऑफ द माइक्रो ऑल द थ्री आर द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम familiar with them. That is why I'm going with them only. Yeah, so is it fine if I use MySQL alongside your MS Yes, SQL, yes, right? yes, sure, sure. You can also use SQLite. वो और भी आसान होता है, उसका ऑनलाइन एडिटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। Okay, fine. मेन And इंटरफेस का ही इशू होगा कि सबका इंटरफेस डिफरेंस है, बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हो, सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है। okay, got it. And one more thing, I have heard that analytics sometimes require statistics and probability things. So, is there any chance by you can add or you can cover some basic topics of statistics as well, like the descriptive one at least? हाँ, तो जैसे हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, इफ वी वांट टू टेक द एवरेज, लेट्स टेक एन इंस्टेंस। हम एक एग्जांपल लेते हैं, वी वांट टू टेक द एवरेज of number of shipments present for some particular date range, okay। तो आपको एवरेज निकालना है। so statistics is itself like how to get mean, mode, median and average, right। तो आपको जब मैं बताऊंगी कि आपको SQL में ये क्वेरी लिखनी है इसके लिए, या पावर BI में ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आपको पता होगा कि एवरेज क्या करता है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, हमें सारी वैल्यूज का सम करना है और डिवाइड बाय द काउंट करना है, ठीक है। तो जब हम लोग ये टूल्स सीखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे तो स्टैटिक्स उसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। आर यू गेटिंग? Okay, fine. If you are still having any issue you can ask. No, fine. Thank you. Ma'am, for analyst role like data analyst, is that only thing that is required, like Power BI, Excel, SQL, or like what else is required for data analyst role? Okay, so we will be learning these four things. If you want, we can also include Python in that. Python is a very powerful language and it is used worldwide. For data analytics, it is also being in use. तो आप पाइथन भी सीख सकते हो, पर उसके लिए कोडिंग का ABCD हमें आना चाहिए। तो जब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे तो हम पहले कोडिंग के बेसिक सीखेंगे, जो मैम टैग वर्ड से है हमें पाइथन, लाइक के बेसिक्स पाइथन तो हम लोग ऑलरेडी DSA करके आए हैं, तो पाइथन पता है। हाँ, तो फिर अगर आपको पाइथन पता है तो उसमें
डेटा एनालिटिक्स की कुछ लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं, ठीक है, लाइक वी यूज numpy, matplotlib, seaborn, आपने इनका यूज किया होगा, राइट? हाँ, यस। तो ये डेटा एनालिटिक्स के लिए ही यूज होता है. So if you people एक्चुअली want me हमने to include more in this, we can include some basics of Python for data analytics, if you people are लाइक comfortable. हमारी लास्ट मेंटर थी, उन्होंने ये फीचर इंजीनियरिंग वगैरह कवर किया हुआ है। तो लाइक डेटा एनालिस्ट रोल के लिए ये सब रिक्वायर्ड होता है, फीचर इंजीनियरिंग और ये डेटा एक्सट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, ये सब। ये डेटा एक्सट्रैक्शन मैनिपुलेशन, हाँ मैंने आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोला, ये एक बिगर टर्म है. तो डेटा एक्सट्रैक्शन, मैनिपुलेशन सब कुछ उसी में आ जाएगा, जैसे हम लोग पावर बीआई में काम कर रहे हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? तो पावर बीआई में काम करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए. तो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग सीक्वल से कर सकते हैं, कोई भी और डेटा सोर्स है वहां से कर सकते हैं. तो जो मैंने आपको इधर बताया था, लेट्स फोकस ऑन माई स्क्रीन. वन सेकेंड. रुचिता, आप एक बार टाइमिंग्स के बारे में भी बता दीजिए कि व्हाट वुड बी द रेगुलर टाइमिंग्स फॉर द क्लास सो दैट देयर आर नो कंफ्यूजन्स. Okay, if you people are comfortable with the timings, then it will be from 11 to 1, 11 a.m. to 1 on the weekends. I'm Fine? fine. या मैम, सैटरडेज एंड संडे? Yeah, weekends, both days. ओके, या Okay. So हम कहाँ पे थे? हाँ, मैंने आपको ये पावर बीआई के बारे में वाला स्लाइड बताया था. तो इसमें ब्रिंग डेटा टू लाइफ, फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट व्हेन वी स्टार्ट द पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप. तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है डेटा सोर्स को कनेक्ट करना, ठीक है? तो यही डेटा एक्सट्रैक्शन है कि हम लोग किसी भी डेटा सोर्स जहाँ पे डेटा पहले से बैठा है वहां से हमारे टूल पर लेकर आ रहे हैं. क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि हमें उस टूल के थ्रू उसे मैनिपुलेट करना है. दिव्या, आर यू गेटिंग द टर्म्स? हेलो? हाँ, या मैम। हाँ, ठीक है. तो हमें डेटा को मैनिपुलेट करना है. सो मैनिपुलेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ. उस बीच में एक और टर्म आता है, डेटा मॉडलिंग, ठीक है? अगर हमारे डेटा जैसे सीक्वल पे डेटा बैठा है, वहां पे डेटा मॉडल्स पहले से अगर बने हुए हैं, तो हमें पावर बीआई में मॉडलिंग करने की नेसेसिटी नहीं होती है, तब हम नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमारा डेटा एक्सेल में प्रेजेंट है और हम उसे वहां से कनेक्ट करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं, तो हमें मॉडलिंग करने की एक नीड होती है पावर बीआई में. वो हम डेटा मॉडलिंग वाला जब हम चैप्टर उठाएंगे तब उसमें कवर करेंगे. फिर इसमें हमारे पास डेटा मॉडलिंग के कई सारे स्कीमास आ जाते हैं, जैसे हम लोग स्टार स्कीमा में कर सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे स्कीमा होते हैं जो हम लोग डेटा मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है? सो डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एक्सट्रैक्शन, आई थिंक you get a kind of insight over it, right? या, आई गॉट इट. Any more questions from your side, guys? किसी को रोड मैप रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर किसी को मतलब लाइक इफ देयर इज समथिंग दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ कि डेटा एनालिटिक्स अगर करना है प्रोसीड, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है. तो अगर इफ somebody would want to answer, give like some kind of questions, put up the questions, you can go ahead and put up. वो पूछ सकते हैं career related and all that. That would be better. Hello. Yes, I have the same question. In fact, you told us that you work in a firm, MNC firm, and in the data analyst field only, right? So, could you tell us, like, apart from this, or let's say, what are the technologies that you use there, or is it code-based technology like Pandas and NumPy, all this thing, or just tool-based like this Power BI, Tableau, and Ultrax, all these things? Okay, right now I am using MS SQL Server with PostgreSQL, Microsoft Power BI for
for this visualization, and Python for doing some automation kind of thing, and also VBA in Excel, or we can say the macros, for macros with the VBA code to get a QA sense of it. क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग मैनुअली टेस्टिंग करते हैं, लेकिन चार्ट्स का मैनुअल टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है। तो उसके ऑटोमेशन के लिए अभी हम लोग अगर आप लोगों को पता हो कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो हमारे पास जो टूल्स हैं वो है, वेट 1 सेकेंड, ओके। हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस की मैं बात करी थी। डेवलपमेंट में दिस फॉर डेटा एनालिटिक्स डेवलपमेंट वी आर यूजिंग PostgreSQL, MS SQL सर्वर, Python, एंड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन वी आर यूजिंग Power BI। ठीक है, लेकिन एक्सेल को हमें यूज करने की नेसेसिटी तब आई जब हमें ये लगा कि जो हम लोग चार्ट्स या डैशबोर्ड्स बना रहे हैं उसमें जो डेटा आ रहा है, जो वैल्यूज आ रही है, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने चार्ट्स डेवलप कर दिए, फिर उसका क्वालिटी देखने के लिए, उसका वैलिडेट करने के लिए हम लोग को टेस्टिंग का नीड आया। सो वी कैन डू मैनुअल टेस्टिंग also, but it will take a lot of time. So what we did, we started writing macros and VBA code so that we can automate our process for testing of our charts and graphs. So I'm using Excel also. Okay, so just based on your response, I think you are using the tool-based approach for data analytics. The Python is just for the automation part, right? Yes, yes. तो मतलब मार्केट में ऐसा यूजुअली यूज नहीं हो रहा है पाइथन का एनालिटिक्स, या फिर जस्ट इन योर फॉर्म ओनली, ऐसा कुछ है? Depends upon the need of the company. आपका डेटा कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप पाइथन के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो चार्ट्स भी ठीक है, लेकिन अभी मेरे केस में या मेरी जो कंपनी है उसके केस में ये है कि जब हम लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो वो जो डैशबोर्ड्स बनते हैं उसमें हमें क्लिक इवेंट्स देने होते हैं। क्लिक इवेंट्स मतलब जब हमारे क्लाइंट को वो डैशबोर्ड्स दिखें तो चार्ट्स के ऊपर किसी बार में अगर उसने क्लिक किया तो उसका अंडरलाइन डेटा उसे दिखना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं बहुत इंटरैक्टिव सिंपल डैशबोर्ड, लैंग्वेज में राइट? आपको बता रही हूँ। सॉरी, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, राइट? हाँ, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स आर ओके। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स आर लाइक आपने एक बार पे क्लिक किया तो बाकी जो चार्ट्स है उस डैशबोर्ड में आपको सिर्फ उसी चीज का डेटा दिखे। जैसे एक सिंपल चार्ट ले लीजिए आप कि मेरे पास सेल्स का डेटा है और मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है कि किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी में कितना सेल्स हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप मान लीजिए प्रोडक्ट कैटेगरी 1, 2 एंड 3, ठीक है, उसका मैं सेल्स का डेटा देख रही हूँ। तो मेरे पास एक बार चार्ट है जिसमें फर्स्ट बार जो है कैटेगरी 1 का है, ठीक है, दूसरा वाला बार जो है वो कैटेगरी 2 का है, एंड लाइकवाइज। सो व्हेन आई क्लिक ऑन द बार ऑफ कैटेगरी 2 तो डैशबोर्ड में मुझे बाकी जितने चार्ट्स हैं सिर्फ कैटेगरी 2 का ही डेटा दिखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। ओके, सो इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये उससे बहुत अलग है। जब हमारे वेब ऐप पे क्लाइंट अपना डेटा देखता है तो जब उस कैटेगरी 2 के बार पे इस बार क्लिक किया उसने तो जो चार्ट्स हैं उसमें डेटा तो वही वाला कैटेगरी 2 वाला ही दिखा। ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड हो गया। लेकिन इसके अलावा मुझे एक दूसरे पेज पे उसे रीडायरेक्ट करना पड़ता है, वेब पेज पे, जहां पर मुझे अंडरलाइन डेटा की मतलब कैटेगरी 2 में जो सेल्स आ रहा है कौन सी ईयर में कितना आपका सेल्स हुआ है, ईयर वाइज, रीजन वाइज, वो सब भी वो देखना चाहता है। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग उसमें दिखा सकते हैं। तो हम लोगों को पावर बीआई का नीड इसीलिए था कि हमें क्लिक इवेंट्स भी उसमें यूज करने थे। तो हमें जो वेब ऐप है हमारी, हम लोग उसमें जाके यूजर को क्लिक इवेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ कोडिंग दूसरा होता है, टाइप स्क्रिप्ट का कोडिंग होता है, उसके थ्रू ये फीचर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। Okay, got it. And what about Tableau? Because आप बोलो you primarily work on Power BI. Is नो, इट डजंट वर्क ऑन पावर बीआई। दे वर्क, उनका जो काम है ना वो दोनों का सेम काम है कि हमें डेटा से इंसाइट्स निकालना है, विजुअलाइज करना है, चार्ट्स बनाने हैं, डैशबोर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन
दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हम लोग दोनों सीखने वाले हैं। What is primarily used in the market? दोनों यूज हो रहे हैं। No, मतलब किसी को एडवांटेज नहीं है, एज नहीं है। हाँ, तो आपको कैसा नीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी को कैसा नीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्पेसिफिक नीड्स के बारे में बता सकते हैं, लाइक वेयर इज पावर बीआई मोर प्रेफर्ड एंड वेयर इज टैबलू मोर प्रेफर्ड? देखो, जो पावर बीआई होता है वो बहुत इजी होता है, उसका इंटरफेस भी बहुत इजी है। जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं वो मोस्टली पावर बीआई ही यूज करते हैं, ठीक है। और बात रही टैब्ल्यू की, तो टैब्ल्यू में ये रहता है कि हम लोगों को कलर्स का, थीम्स का, इसका बहुत अच्छे अलग और ऑप्शंस मिल जाते हैं जो पावर बीआई में नहीं है। कस्टम विजुअलाइजेशन टैब्ल्यू में ज्यादा है। ओके, got it. Anyone else who want to ask something? Feel free Ma'am, to ask. I'm here to answer only. hi ma'am, Ajay here. Yeah, hi. Can you show us some examples of what you said, the clickable one, the clickable data boards? No, that I can't show you, mm, because because it is not in my hand. ये मेरा ऐप नहीं है, मेरा इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। आई एम एन एम्प्लॉय देयर कंपनीज ओनली, डेटा है सो आई ब्रो, कांट कैसे शो। दिखा सकते हैं? सेंसिटिव डेटा होता है, नहीं दिखा सकते, कांट शो। Okay, thank you. आप जब डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे देन शील शो कि हाउ हाउ डज इट हैपन। तो अभी कंपनी का डेटा तो भाई, डू यू वांट टू गेट फायर्ड और व्हाट? फायर करवाओगे क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हेलो मैम। हेलो। जैसे पावर बीआई में ना हम लोग चार्ट्स बनाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है डिल थ्रू ऑप्शन, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे वो वर्क करता है। तो उसी के सिमिलर फंक्शनैलिटी पे क्लिक इवेंट्स वर्क करते हैं। मैम, वो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स देखे हैं तो तभी थोड़ा जानना था कि कैसा अलग रहता है, क्या डिफरेंस हाँ, आता हम लोग है। सीखने वाले हैं, तो अभी सारी चीजें एक साथ नहीं बताई जा सकती है। आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा या हिंदी व्याकरण भी पढ़ा होगा, है ना? तो हम्म, सबसे पहले क्या सिखाते हैं उसमें? हिंदी व्याकरण में सबसे पहले क्या सिखाते हैं हम लोग? सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, फिर वर्ण के टाइप्स सीखते हैं, स्वर सीखते हैं, व्यंजन सीखते हैं, है ना? फिर उसके बाद वाक्य क्या होता है ये सीखते हैं। तो सिमिलरली हम इंग्लिश ग्रामर में भी ये सीखते हैं, तो वही हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाएंगे। अभी अगर मैं आपको ड्रिल थ्रू बताऊंगी भी, क्योंकि ड्रिल थ्रू मैं आपको भी बता सकती हूँ, तो वो लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। जब शुरू से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी समझ आएगा। ओके मैम। हेलो मैम। हेलो हाँ, हाय वेदांत। या मैम, डीएसए रिक्वायर्ड है क्या डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए, और है तो कितना रिक्वायर्ड है? नहीं, डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए डीएसए रिक्वायर्ड नहीं है, पर आपको आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो एक हाँ। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग सीक्वल सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग आरडीबीएमएस सीखेंगे, डेट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें हमारा जो डेटा होगा वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो टेबल एक स्ट्रक्चर ही हो गया ना डेटा का। यस। इसको हम एक एरे की फॉर्म में भी पाइथन में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे क्या होता है वो आपको आता है, आता ही होगा। नहीं भी यस। आता है तो जब भी कभी पाइथन का कुछ या फिर सीक्वल में मैं जैसे अभी आपको टेबुलर स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसमें कॉलम्स बताऊंगी, रोज बताऊंगी, तो वो जब हम लोग सीखेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। नहीं, आई मेंट डीएसए क्वेश्चंस का कितने करने पड़ेंगे ऐसा? डीएसए क्वेश्चंस नहीं, डीएसए क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे आपको। आप ओके। मतलब जब कंपनी में कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तब के लिए बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, तभी के लिए। नहीं, वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू। Hello, Chaitanya. Hey Chaitanya, are you there?
यार I'm on call, मैं दूसरी कॉल पे हूँ, मतलब I'm on simultaneous parallel call, तो एक डिप्लॉयमेंट चल रहा है। दिव्या आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा अदरवाइज। ओके। रुस्ता आई विल बी लीविंग द सेशन, ठीक है, यू कैन कैरी ऑन। तो मेरी एक मतलब देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ माइन, तो आई विल बी गोइंग देयर। तो गाइस इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू करियर, सो अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स। को नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अगर आपको कोई रोड मैप से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लीजिए, वरना द नेक्स्ट क्लास वुड बी, द शेड्यूल इज गोइंग टू बी 11 to 1:30 from like on Saturdays and Sundays itself. That will be the fixed timings. So timings वगैरह चेंज नहीं होंगे, अगर चेंज होंगी तो we will be mailing you about the time change, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप इनसे पूछ लीजिए, अदरवाइज like basically yeah, Rusta, that would be your call to take up the session. Yeah, sure, Okay, sure. cool. Okay. Thank you guys, thank you. So we can continue. Any other query if you people are having, you can ask frankly. Yeah, just final one from my end. What about the projects that will be that will be completed in this specific course? Is there any project in your mind, or you have pre-decided something? जब हम कुछ फीचर सीख रहे हैं और फिर हम लोग उसका इम्प्लीमेंट, पहले सिंटैक्स सीखेंगे, उसका क्या यूज है वो सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कि हम लोगों को कितना समझ आया उसका, जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करने के बाद सिंटैक्स, उसका यूज, इस स्टेप, इस सीक्वेंस के थ्रू चलने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट्स विल बी इन द एंड। What about like the complete like capstone projects like that? Because यू आर features तो आस्किंग समझ अबाउट रहे हैं। हाँ, एंड टू एंड पूछ रहे हैं, एंड टू Yes, एंड प्रोजेक्ट। yeah, because feature projects तो मैं समझ गया कि we learned some feature, we learned some specific thing, तो उस पे हमने project या फिर वो implement कर लिया। But एक होता है ना complete होता है, that involves SQL, that involves multiple technologies tools to get a final product। तो वैसा कुछ project है क्या इसमें, वो कुछ हाँ, है? प्रोजेक्ट है। जब हम लोग ये सारा कवर कर लेंगे, सारी लर्निंग्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड तैयार मिलेगा और वो एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट ही दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि हमें एक वन गो में वी नीड टू गो थ्रू वन स्टेप ओनली एंड नीड टू क्रिएट वन एंड टू एंड प्रोजेक्ट, देन वी कैन टेक। Any detail about the project that सॉरी, you, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। any detail about the project that you are talking, जो हम फाइनल में कंप्लीट कर लें फिर अचीव करेंगे, उसमें मतलब आपको क्या चीज का हाँ, प्रोजेक्ट तो वो रहेगा? जो प्रोजेक्ट हम लोग लेने वाले होंगे ना, उसमें हम लोग सीक्वल डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई में, और हम लोग एक्सेल डेटा सोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका हम लोग डेटा मॉडलिंग करेंगे अगर वो एक्सेल से है तो, और अगर सीक्वल से भी है और उसमें मॉडल्स प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग पहले डेटा मॉडलिंग करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। तो जो रिक्वायरमेंट होगी कि हम लोग, हमारा जो डैशबोर्ड बनेगा उसके ऊपर क्या चार्ट्स दिखने चाहिए, क्या डिटेल्स और क्या वैल्यूज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द कैलकुलेशंस, विद द हेल्प ऑफ डेक्स। मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि डेक्स जो है एक डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन होता है, और एम लैंग्वेज भी हम इसमें यूज करने वाले हैं। पावर क्यूरी एडिटर के थ्रू हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। फिर हम लोग हमारा विजुअलाइजेशन पार्ट देखेंगे जिसमें हम मल्टीपल चार्ट्स के बारे में सीखेंगे और उनके क्या फीचर्स होते हैं और हम लोग उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब रहेगा आपके इसमें प्रोजेक्ट में। फिर उसको हम लोग पावर बीआई सर्विस के ऊपर हाउ वी कैन पब्लिश इट ऑन पावर बीआई सर्विस, फिर वो चीज देखने वाले हैं। सो ये एंड ओके, टू एंड प्रोजेक्ट आपका पावर बीआई के लिए हो जाएगा। और सीक्वल के लिए हम लोग कुछ क्वेरीज यूज कर सकते हैं कि हमें मेन हमें जो डेटा है, जैसा अंडरलाइंग डेटा है, उसके अलावा हमें क्या इंसाइट्स चाहिए बाय यूजिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। तो वो भी हम सीक्वल जब एंड अप करेंगे तब हम लोग देखेंगे। सीक्वल एंड करने से पहले और पावर बीआई एक्सेल शुरू करने के बाद, ठीक है, तब हम लोग बीच में उसे लेंगे। okay. And is there any data warehousing things that will be covered in this course? जो ETL वगैरह होता है, ऐसा सॉरी कुछ है? सॉरी सॉरी, नॉट अंडरस्टैंडिंग।
ETL you're या asking? ETL लाइक डेटा वेयर हाउसिंग होती है ना, जो अपाचे स्पार्क सबसे यूज होता है, वो सब कुछ होगा यूज इसमें, हडूप वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, इसमें नहीं होगा यूज, क्योंकि ये टूल बेस्ड है। तो रोड मैप यही है अपना। तो इसमें हम लोग टूल्स सीखने वाले हैं कि कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है। और ETL जो आपने एक वर्ड बोला, सो E फॉर एक्सट्रैक्शन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड L फॉर लोड, तो वो सब हम करने वाले हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके। मैम ये प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, फिर डेटा साइंस वाला भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा? जैसे मशीन लर्निंग वगैरह कुछ रहता है ना उसमें डेटा साइंस में, एआई नहीं, थोड़ा इस बहुत? वाले कोर्स में डेटा साइंस इंक्लूड नहीं है। ये डेटा एनालिटिक्स का ही कोर्स है। मे बी सम अदर मेंटर विल टेक डेटा साइंस, बिकॉज आई एम नॉट फॉर इट। आई एम टोटली फॉर डेटा एनालिटिक्स। आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं वाला क्वेरी के लिए, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं ओके। हेलो। हेलो। हेलो मैम। है। बताइए। मैम लाइक डेटा एनालिस्ट फील्ड में ऐसे फ्रेशर्स को हायर किया जाता है इजीली? लाइक आई एम अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट तो। हाँ हाँ, बिल्कुल किया जाता है। ओके मैम, थैंक यू। Okay, anyone else is here to ask something? कोई भी और क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो हमारा ये सेशन है, आई थिंक इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड आई ऑल्सो वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दिस कैरियर। जैसा अभी आपने पूछा कि फ्रेशर्स को इसमें हायर किया जाता है या नहीं, बिल्कुल किया जाता है इसमें फ्रेशर्स को हायर। और अभी ये हमारा बहुत ज़्यादा मार्केट ट्रेंड ही बन चुका है, क्योंकि हर जगह डेटा है और डेटा बहुत सारा है। तो उसे मैनेज करना और उसे इंसाइट्स निकाल के स्मार्ट डिसीजंस लेना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। और इसके लिए स्किल सेट जो है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो करियर वाइज ये बहुत ब्राइट फील्ड है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर करियर। सो इट दीज स्किल्स आर हाई इन डिमांड। सीक्वल तो इवन जब मैंने सीखा था तब भी बहुत डिमांड में था। लेकिन सीक्वल एक ऐसा स्किल है जो कभी ऑब्सलीट नहीं होता है। ये हम लोग कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कंपनीज में भी यूज़ करते हैं। और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ। तो सीक्वल तो एंड टू एंड आपको यूज़ करना ही है टीए के लिए। सो इसीलिए हम शुरुआत सीक्वल से करने वाले हैं। और फिर ये मेन है एक तरीके से। अगर आप सीक्वल अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पावर बीआई और टैबल्यू में कोई इशू नहीं आएगा। और एक्सेल इजी होता ही है, क्योंकि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते ही हैं। भले ही हम लोग उसमें कोई एडवांस नहीं मतलब एडवांस फीचर्स ना करें, मैक्रोज नहीं करें, वीबीए नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कुछ किया है वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो जिस चीज पे हम लोग पहले से वर्क कर रहे हैं, हम कंफर्टेबल, तो एक्सेल में हम लोग कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। इज देयर एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल इन एक्सेल? एवरी, दैट इज ग्रेट। ठीक है। You एडवांस want to एक्सेल ask? नहीं आता मैम। हाँ, advanced Excel is something that we will take in the last. Okay. एडवांस एक्सेल का कोई बात नहीं है। एडवांस एक्सेल में बेसिकली पाइवट टेबल्स, मैक्रोज और वीबीए ही आता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी अभी के लिए हमें सीक्वल पे फोकस करना है। और अगर हम सीक्वल अच्छे से कर लेंगे तो पावर बीआई और टैबल्यू हमारे लिए बहुत इजी होने वाले हैं। लेकिन अगर सीक्वल में प्रॉब्लम आई, इशू हुआ, तो फिर आगे पावर बीआई और टैबल्यू में भी इशू आएगा। ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम भी, सबसे ज़्यादा टाइम सीक्वल को ही देंगे, क्योंकि कंसेप्ट अराइज ही यहाँ से होते हैं।
जहाँ हमारा डेटा है और जहाँ हमें इंसाइट्स निकालने हैं। अभी और कोई डाउट है किसी को? मैम इंटरव्यू के टाइम पे मोस्टली किस चीज़ पे फोकस किया जाता है जब भी लाइक इंटरव्यू लोग कंडक्ट कराते हैं, कौन से फील्ड पे? टेक्निकल इंटरव्यू सीक्वल पे ही बेस्ड होता है। जैसे मैंने जब ये वाला इंटरव्यू मेरा क्रैक किया था तो उन्होंने सिर्फ सीक्वल ही पूछा था, ठीक है। और that time this company was using MongoDB for data analytics. Mongo charts, Mongo Atlas charts they were using. But after my joining, after 1.5 years, I shifted the technology to Power BI because it was the need of the hour that time. तो क्योंकि MongoDB पे एटलस चार्ट्स थे, फिर भी उन्होंने इंटरव्यू में MongoDB नहीं पूछा, सिर्फ सीक्वल ही पूछा, क्योंकि कंसेप्ट्स वहीं से अराइज होते हैं, वही फंडामेंटल्स होते हैं। अगर वो किसी को क्लियर है तो वो कोई भी टूल, कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकता है। ओके मैम। Anything else you want to ask? मैम ये अप्रॉक्स हम कितने मंथ में खत्म करेंगे पूरा ये कोर्स? लाइक 2-3 मंथ्स कितना लगेगा पर सैटरडे संडे? हाँ, so it will depend on the catching power of you all, right? अभी हम लोग सैटरडे को जैसे क्लास होने वाला है, तो 2.5 आवर्स का वो क्लास होगा। तो हम लोग जितना, ठीक है, क्लास के बाद फिर उसका क्लास हो गया, ठीक है, फिर आपको कुछ इशू आया, आपने पूछा, लेकिन आपको फिर हैंड्स ऑन करना है, वो क्वेरीज रन करके देखनी है, खुद से प्रैक्टिकल करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तभी वो हम लोग अच्छे से और जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। तो अगर जल्दी जल्दी हम लोग सीख रहे हैं तो पीछे का भूल ना जाए, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली हमें प्रैक्टिस भी करना है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, खुद अपने हाथ से क्वेरी लिख के उसे रन करा के देखना है कि जो डेटा हम लोग चाह रहे थे, जो काम हम लोग करवाना चाह रहे थे, जो डिजायर्ड टेबुलर फॉर्मेट हम चाह रहे थे, क्या वो इस क्वेरी के थ्रू रिजल्ट में हमें दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो वो इसी पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना खुद से प्रैक्टिस करते हैं, हाउ मच वी आर मोटिवेटेड फॉर आवरसेल्व्स। ओके मैम, थैंक यू। फिर भी मैम कोई तो एक स्पेसिफिक आपने डिसाइड कर रखा होगा ना नंबर कि इतने 1 मंथ 2 मंथ में कंप्लीट हो ही जाएगा, आई थिंक ऐसा कुछ तो होगा। नहीं, मैंने कुछ सेट नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ मुझे कंप्लीट नहीं करना है, मुझे सिखाना है। अभी आज मैं आपको कुछ बता देती हूँ, सीक्वल का एक सिंटेक्स, एक क्वेरी, एक फीचर आपको मैंने बता दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंटीज हैं जिसमें उन्हें इशू है, तो नेक्स्ट क्लास में पूछने वाले हैं, तो वहां पे भी हमें उन्हें टाइम देना है, तो सबको साथ में लेके चलना है। तो इसलिए मैंने अपने आप से कुछ फिक्स नहीं किया है, कुछ नहीं सोचा है। आप लोगों का जो पेस होगा, मुझे उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। वर्क्स? मेक सेंस? यस। What else you want to ask? Nothing? That is great if all your queries are solved here. If not, you can ask. You can ask. Okay, then time to wind up, right? Yeah. Thanks everyone. Nice to meet you. Let's again catch up next Saturday. Okay. Be prepared and okay. Nothing else. Thank you. Bye bye. थैंक यू मैम, बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Bye.